Yes, Ariza. Hello. Hello, good evening, sir. Good evening. So today in the previous session we have studied about the series and the parallel combination of capacitors, है ना? Yes, sir. इस सीरीज में अगर कनेक्ट होंगे Yes, क्या sir. तो what will be the effective capacitance, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो what will be the effective capacitance. Now the capacitance की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि what is the definition of capacitance, what capacitance is, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था. So now टुडे हम आज ये डिराइव करेंगे कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर सी, इसका एक फॉर्मूला होता है. एक तो ये फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया था Q इज इक्वल टू सी वी था, वह सी वॉज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. और एक फॉर्मूला और है विच इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट. इनफैक्ट इट इज नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज के एप्सिलॉन नॉट into A divided by D. ठीक है, this is another formula for the capacitance of a capacitor. K क्या है? K is the dielectric constant. Yes. हमने when we in the chapter number 1 we have studied about the relative permittivity. पढ़ा था हमने? Yes. Where the permittivity of a medium was equal to the permittivity of free space. Epsilon naught into epsilon naught. So this relative permittivity and this dielectric constant are the same thing. Yes, sir. ठीक है? So today we will be deriving this equation. That is, the capacitance of a capacitor is equal to K times epsilon naught A upon D. ठीक है? तो first of all today we will first of all derive the equation for the capacitance of a capacitor when the medium between the plates is air. ठीक है, ये एक आपका कैपेसिटर है. Yes, sir. दिस इज अ कैपेसिटर. तो दिस इज दी दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. Yes. ठीक है. नाउ कंसीडर दैट ये कैपेसिटर है एंड द चार्ज हियर इज प्लस क्यू एंड द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज माइनस क्यू. ठीक है, यहाँ पर A जो है दिस इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. Yes. एंड D क्या है? D इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स. ये D हो गया. ठीक है. सो यहाँ पे आप देखो द कैपेसिटेंस क्या है, C इज इक्वल टू, ये अभी हम डिराइव करेंगे लेकिन पहले आपको मैं कुछ बता देना चाहता हूँ. देखो यहाँ पर K क्या है? दिस इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या विच इज आल्सो कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी. नाउ Yes, sir. अगर हम जो फर्स्ट केस लेंगे अभी जो सेशन में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, so we will be deriving the equation for the capacitance of a capacitor when the medium, this is the medium between the plates of the capacitor, when the medium is air. ठीक है. Yes, sir. अब ये जो मीडियम है कैपेसिटर का बीच का जो मीडियम है, ये एयर भी हो सकता है और भी कोई भी आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इसमें डाल सकते हैं. बट राइट नाउ टुडे Yes, sir. we will derive the equation for the capacitance of a capacitor in which the medium between the plates is air. ठीक है. Yes, sir. तो अगर दोनों प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो एयर है तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? ये फॉर्मूला है Epsilon naught. एप्सिलॉन नॉट A. Epsilon naught A by D. D हो जाएगा क्योंकि K की वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है. तो नाउ दिस इज व्हाट वी विल बी डिराइविंग टुडे. दैट इज if the medium between the two plates of a capacitor is air, then the capacitance is equal to epsilon naught A divided by D. ठीक है. Yes, sir. तो अब इस देखो इसमें क्या है, फर्स्ट थिंग है आपको यहाँ वी विल टेक दिस फॉर्मूला फर्स्ट, दिस वन. So now, we will take this formula first. This one. So now, this is the formula. So now,
वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, है ना, और Yes, sir. C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ठीक है, हेलो, Hello. Yes, sir. हाँ. सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट that the capacitance is the amount of charge needed to raise the potential by unity. अगर हमें because V is what, it is the potential difference. ठीक है, so if the potential, if we increase the potential difference of a capacitor by 1 volt, then the capacitance is equal to Q, means the amount of charge which is needed to raise the potential by 1 volt. ये होगी, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी. सो यहाँ पर अभी अगर मीडियम बीच में एयर है तो हमें अभी ना वी हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. इसको डिराइव करना है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो, व्हाट वी हैव कंसीडर्ड हियर इज दैट द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q. लेट अस कंसीडर दैट इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज Q. ठीक है, when the potential difference Yes, sir. across it is V volt. When the potential difference across it is V volt, तो उस टाइम पे जो चार्ज है वो कितना है आपका, Q है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, in order to find the capacitance, Q तो चार्ज हो गया, now V क्या होता है? V is the potential difference. Yes, sir. Now potential difference का हमने जो फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, V वॉज इक्वल टू क्या था, A इंटू D. Yes, sir. ठीक है ना, ये पढ़ा था आपने. Yes, sir. सो अभी आप लेट अस टेक एनी पॉइंट इनसाइड दिस कैपेसिटर, कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ पर ले लिया, दिस इज अ पॉइंट P. लेट अस दिस इज अ पॉइंट P इनसाइड दिस कैपेसिटर. Yes, sir. So, in the first chapter, we have, while studying about the application of Gauss law, we have derived one equation for the intensity of electric field due to an infinitely long charged plate. Gauss law में तीन हम लोगों ने applications पढ़े थे. One was we have found the intensity of electric field due to a thin cylindrical wire, due to a infinitely long thin cylindrical wire, वो आपने पढ़ा था. Yes, sir. उसका क्या फॉर्मूला था? What was the value of E? देखो अलीजा, मैं आपको फिर से एक बार बोलता हूँ, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, देखो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं. The concepts which we have studied in the chapter number 1 are being utilized in the chapter number 2. Yes, sir. आप देख रहे हो ना? तो अगर आपका चैप्टर नंबर 1 में आपने रिवीजन नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको समझने में फिर दिक्कत होगी. अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली first thing which we have to do is we have to find the value of E at this point P. Now this is a charged plate. This is a charged plate. Yes, sir. And the intensity of electric field due to an this infinitely long charged plate is equal to what? We have studied about it in the while we were discussing about the application of Gauss law. What is the formula for it? Can you derive it also? The lambda by. No. That was for the intensity of electric field for a cylindrical thin wire, for a very very long cylindrical thin wire. वो तो आप जो बता रहे हैं lambda divided by 2 pi क्या था? Epsilon naught r. हाँ. But I am asking you about the intensity of electric field due to a very very long, or you can say an infinitely long charge plate. उसका आपको क्या वैल्यू था? So this is the reason why I am again telling you
please revise what has been told you in means what has been taught in the previous chapter. Physics में there is a continuity. Physics Yes. में बहुत हाँ the concepts of chapter number 1 will be utilized in the chapter number 2 and the concepts of chapter number 2 can be utilized in the chapter number 3. तो अगर आपके चैप्टर नंबर 1 में क्लैरिटी नहीं आएगा तो 2 नंबर कैसे करोगे आप? या आपको अगर जैसे अभी यहाँ आपसे मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट which we have already studied in the chapter number 1 under the topic of application of Gaussian. देखो अभी मैं आपको बता देता हूँ बट अभी मैं आपको एक काम और करता हूँ. आई हैव गॉट जैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है आपको पता ही होगा, ठीक है. मैं वहाँ पर हाँ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की प्लेलिस्ट है. उसमें कई सारे वीडियोस हैं एंड दे आर इन द राइट ऑर्डर. मतलब पहला जो आपका इंट्रोडक्शन है तो आई हैव क्रिएटेड दैट प्लेलिस्ट इन द राइट ऑर्डर. आप उसको एक एक जब भी आपको टाइम मिलता है एक एक वीडियोस को, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, इट मे बी ऑफ 30 मिनट्स 20 मिनट्स लाइक दैट, उसको कर लेना आप और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है. Yes. बट दिस इज वेरी वेरी नेसेसरी. अगर आपको पहला चैप्टर क्लियर नहीं है या आप भूल गए हो तो वो आपको याद आना ज़रूरी है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, ठीक है. अब मैं आपको बता देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ इस सेशन के लिए कि ये मान लीजिए एक कोई प्लेट है ऐसे करके एंड दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग प्लेट. दिस इज एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट है, ठीक है. मान लो इसमें आपका ये पॉजिटिव चार्ज है विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द प्लेट. तो यहाँ पर एक पॉइंट हमने लिया था E, लेटर से यह पॉइंट P है. तो यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. Yes, sir. ये फॉर्मूला था. जब आप अभी आफ्टर दिस सेशन ट्राई टू रिवाइज वॉट एवर हैज बीन टॉट इन द प्रीवियस सेशन, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है. Yes, sir. सो अब पॉजिटिवली चार्ज प्लेट अगर है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ होगा, इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. Yes, sir. ठीक है. सो ये आपका एक प्लेट है, ये एक कैपेसिटर है. कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिवली चार्ज. और इसके दो टर्मिनल इस प्रकार से कैपेसिटर होता है. आपका जो फैन होता है ना, फैन होता है, Yes, sir. फैन में भी कैपेसिटर लगता है. तो कैपेसिटर गोल सा होता है. अभी आप मार्केट में जाएंगे तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार का गोल सा होगा और इसके अंदर 2 तारे होंगी, ठीक है, इस प्रकार से. Yes. तो ये आपकी 2 वायर्स हैं, ये 2 टर्मिनल्स हो गए कैपेसिटर के. तो ये आपका एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाती है, दूसरी वाली आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाती है. और हमने यहाँ पर माना है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो आपका Q है, ठीक है. तो Yes, sir. अब देखो इस पॉइंट P के ऊपर ये आपका एक प्लेट है जिसका जो सरफेस एरिया मैंने आपको क्या बताया, द सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल टू A. A is what? It is the surface area of the plate, ठीक है. So इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये प्लेट की वजह से यहाँ पर एक at this point there will be some electrical field, हाँ Yes, sir. ठीक है. आप चाहो तो ये डायग्राम बना लेना, ठीक है. वॉट एवर आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट ट्राई टू नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस इज अ कैपेसिटर. द कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स, वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. एंड दीज 2 प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है. एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ दीज 2 प्लेट्स आर द सेम, ठीक है. ये शेप कुछ भी हो सकता है. शेप जो है ना, इसका शेप मान लीजिए लेट अस से ये एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर शेप में भी हो सकता है.
बट अगर ये सर्कुलर शेप में है तो ये भी सर्कुलर शेप में होगा, दूसरा वाला भी। ये रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये भी आपका रेक्टेंगुलर होगा, बिकॉज दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा, ए होगा। द एरिया, द डायमेंशंस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी द सेम फॉर बोथ द प्लेट्स, ठीक है। Yes, sir. सो नाउ अब यहाँ पर है कि दी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूला है जो आपको मैंने बताया था इन द प्रीवियस सेशन। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला now v is what, v is equal to e to d, ठीक है। now I have Yes. taken any point here, this is a I have randomly chosen any point, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज प्लेट की वजह से क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Epsilon naught. and this is a positively charged plate, so the direction of the E because of this positive charge will be as indicated by this arrow, outward होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एरो से बना दिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ऐसे करके। अच्छा, अब ये आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। फॉर द नेगेटिवली चार्ज Yes, प्लेट sir. the direction of the electrical field will be directed towards the charge or inward, है ना। Yes, sir. The direction of the electrical field to the negative charge is directed inwards or towards the charge। तो यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो किधर डायरेक्टेड होगी, इधर, टुवर्ड्स द चार्ज, इनसाइड। Yes, sir. पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी इधर हो गया, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। Yes. नाउ Yes, sir. नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आपकी E की वैल्यू है वो क्या होगी, सिग्मा अपॉन, अगेन सेम ही होगा, बिकॉज दोनों पे चार्ज जो है वो सेम है और दोनों का जो सरफेस एरिया है प्लेट का वो भी सेम है, तो जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जो है आपकी E की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Yes, sir. So what is the total value of E? Total, or you can say the net value, not the total. Net value of the intensity of electric field at any point inside this capacitor कितनी हो जाएगी? That will be equal to, हाँ plus sigma by 2 pi. हाँ, दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. ठीक है ना। सो ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 sigma by 2 epsilon naught. so this will be equal to Sigma sigma by upon epsilon. epsilon naught. So the net value of E at any point inside the capacitor will be equal to sigma upon epsilon naught. Yes, sir. Now what is sigma? Sigma क्या है? What is sigma? Sigma is the surface charge density. तो surface charge density क्या है, अगर इसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है, और यहाँ पे जो प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो कितना है, A है, Yes, sir. तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया, Yes, sir. है ना। सरफेस चार्ज, हमने तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, वन वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, वन वाज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वन वाज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Volume. ठीक है। Yes. सो इन द केस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया इस प्लेट का क्या है, ए है, चार्ज कितना है, क्यू है, Yes, sir. तो क्यू बाई ए हो जाएगा, Yes, sir. हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू डाल देंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो यू जस्ट आप जो है ना, ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जस्ट कीप ऑन राइटिंग इट इन द सेम ऑर्डर, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, बिकॉज Yes. कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रिपरेशन फॉर द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन,
बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस प्रकार की डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती हैं। आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई में डेरिवेशन आती हैं, तो दे कैन आस्क यू अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दिस कैपेसिटेंस। आपसे पूछ सकते हैं कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द मीडियम इज एयर, बोल सकते हैं आपको, तो यू शुड नो हाउ टू डिराइव इट। Yes, sir. ठीक है ना, इसीलिए यू कैन राइट डाउन each and every step in the correct order so that it will help you while you are revising the content before the examination. So ये हो गया आपका E की वैल्यू। This is the net value of electrical field inside the capacitor। ठीक है, E की वैल्यू आ गई। I have put the value of this surface charge density as Q upon A, Yes, है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E इंटू डी। Yes, sir. सो अगर नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाउ V इज इक्वल टू E इंटू डी। सो विच इज नाउ E की वैल्यू कितनी आ गई, Q डिवाइडेड बाई V by D. A एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू डी हो जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा। आ गया, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. आ गया। Yes. अच्छा अब क्या करेंगे, नाउ Q by V is equal to C. हाँ, नाउ the capacitance of this capacitor is equal to Q upon V। so Q हम यहाँ पे लिखेंगे Q divided by V की वैल्यू क्या आ गई, Q D। इसको मैं रब कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। so Q D divided by A dot epsilon naught आ गया। Yes, sir. so this is equal to Q, ये A epsilon naught will go in the numerator, Yes, sir. A epsilon naught divided by क्या हो जाएगा, Divide by D. Q into D। आ गया। Q cancel. so हाँ, तो this is C। so यहाँ से आप देखो कि Q and Q will get cancelled out and finally what we are getting is epsilon naught A upon D। आ गया, Yes, sir. आ गया, आपका डेरिवेशन आ गया। so Yes, sir. the capacitance of a capacitor which has got the whose surface area of these charged plates is A and the separation between the charged plates is D is given by epsilon naught into A divided by T। Yes, ठीक है, sir. so this is the first derivation which you should know because these type of questions are asked many a times in the board examination। CBSE में तो बहुत Yes. आपका CBSE से एप्लीकेशन है ना आपका, Yes, sir. हाँ, तो CBSE में इस प्रकार के क्वेश्चन डेरिवेशन बहुत आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन विच आई टोल्ड यू। तो यहाँ पर क्या था कि मीडियम जो था वो क्या था आपका, एयर था। द मीडियम वॉज एयर। नाउ ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। दिस इज द फर्स्ट केस। Ready?